Hello students, I am Sumit Sharma here to teach you computer information technology. In the last video we have discussed about structured query language, the two types of commands of SQL, data definition language and data manipulation language. Both are the commands, both has the significance, and also have discussed about the create command, how to create a table using create command in SQL. Today we will discuss the next command, that is insert command, how to insert a data in a table using SQL commands. To insert the data in a table we have insert commands, and today we will discuss how to use that command. So to insert a command, insert a data using insert command, go to the create tab and click on query design. Here you will find out the tables. Add one table here and close it. Go to the SQL view and type your command. So to insert the data we have to type insert command insert, then into your table name. I am writing the syntax of the command, table name, and then start the parenthesis. Type your field's name. Here you have 1, 2, 3. Three fields here. First one is student ID, second is name, and third is result. So to insert the data in these fields, type here the name of the fields. That is, the first field is STUID, STU underscore. Let's check it. Actually we have STU ID, then separate these fields with a comma. Actually I was writing the syntax, so write here field name 1 and separate it with comma, then set field name 2, separated with comma, FIELD, field name 3 and separated with comma and shown. जितने भी आपके फील्ड्स हैं वो सारे यहाँ पर नाम लिखे जाएंगे. ठीक है. आफ्टर टाइपिंग द नेम ऑफ दिस फील्ड, come out from the parenthesis and type value and start again parenthesis, type the type the values of these fields. First field, so value 1, value 2, separate these values also with comma. Here you are finding that we have typed here field name 1. The value of field name 1 will carry value 1. Okay, the value of the field name 2 will carry the value of value 2 and so on. मतलब ये हुआ कि रेस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ से टेबल नेम के जो फील्ड नेम है यहाँ से जो ये वैल्यू उठाएंगे, ये उठाएंगे अपने रेस्पेक्टेड वैल्यूज को. ठीक है. जैसे अगर फर्स्ट नंबर पर ये लिखा हुआ है फील्ड नेम 1, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू को ही उठाएगा और अपने जो हमारी टेबल है उसमें इंसर्ट करेगा. मान लीजिए अगर हम इसको फील्ड नेम 2 को यहाँ से हटाकर
यहाँ पर 1 रख देते हैं और यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। तो जो फील्ड नेम 2 है वो रिसीव करेगा वैल्यू 1 को, और फील्ड नेम 1 जो है वो रिसीव करेगा वैल्यू 2 को, और ऐसे हमारा आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू 3 एंड सेपरेट इट विद कॉमा एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये था हमारा इसका सिंटैक्स कि हम किस तरीके से टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, उसमें क्या है, एक चीज और, इसके बाद हमें लगाना होता है सेमीकोलन, तभी हमें हमारी ये जो कमांड है तभी ये रन कर पाएगी। ठीक है, अच्छा, हमारे पास एक और तरीका होता है कि हमें सारी की सारी फील्ड्स में एक मतलब डेटा रखना है और रेस्पेक्टिव रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये जहां से उठा रहा था, जैसे अगर हमने यहाँ पर फील्ड नेम 2 लिखा है तो फील्ड नेम 2 में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी वैल्यू 1 की। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं, इंसर्ट इनटू your table name and here we have not the field name parenthesis. Okay, directly type the values and start the parenthesis for the values and type your value 1, value 2, value 3 and so on. Here you will find these values will add in the respective fields according to the लोकेशन ऑफ दीज वैल्यूज। मतलब ये हुआ कि आपका जो वैल्यू 1 है वो पहले नंबर के जो फील्ड है उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। यहाँ पर हम इसका फील्ड नेम चेंज नहीं कर सकते, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट वाले फील्ड में जाएगी और जो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर लिखी हुई है वो सेकंड फील्ड में ही जाकर इंसर्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है। दो तरीके होते हैं, इसमें हमें सारी वैल्यूज लिखनी होती है और क्या करते हैं कि रेस्पेक्टिव वे में लिखनी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम उसके आगे पीछे किसी भी जगह पर रख सकते हैं। जैसे अगर हमें फील्ड नेम 2 में अगर वैल्यू 1 चाहिए, मतलब ये पहले लिखना है ये बाद में लिखना है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो तरीका होता है वो यही वाला होता है, सबसे ज्यादा यूज यही होता है क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है। अगर बात करें कि शॉर्ट वे की, तो शॉर्ट वे में हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ डेटा आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो हमने टाइप किया इंसर्ट इनटू योर टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, STU रिजल्ट लिख लेते हैं, STU अंडरस्कोर रिजल्ट RESULT। आफ्टर दैट स्टार्ट द पैरेंथेसिस फॉर द फील्ड नेम। फील्ड नेम कौन कौन से हमारे पास, यहाँ पर एक तो STUID है, एक नेम है और एक रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं STU अंडरस्कोर ID, उसके बाद कोमा लगाएंगे और लिखेंगे नेम, उसके बाद कोमा लगाएंगे और अगला क्या था, रिजल्ट। ठीक है, यही है STUID नेम एंड रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेंथेसिस से बाहर आएंगे, स्पेस लगाएंगे और लिखेंगे वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, पैरेंथेसिस में वैल्यू हम लिख देते हैं, STUID हम लिख लेते हैं 103 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा देखो स्टूडेंट आईडी जो हमने सेट की थी वो हमने एक इंटीजर सेट की थी। ठीक है, तो हमारी जो स्टूडेंट आईडी है वो इंटीजर में ही होगी। ठीक है, नेम होगा वो वैरचर में होगा, रिजल्ट भी हमारा शायद वैरचर में ही था। ठीक है, तो हमारा नेम क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं अंकित। ठीक है, उसके बाद कोमा लगाते हैं और इसका रिजल्ट जो है हमारा, सॉरी मार्क्स थे ना, तो रिजल्ट भी हमारा इंटीजर में होगा, तो हम इसमें लिख लेते हैं 90। ठीक है, अभी हमारा जो अंकित है ये हमारा स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग वैल्यू को हम जो है इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। ठीक है, नहीं तो ये रन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं पैरेंथेसिस और हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। हमने ये रन किया, कुछ आता है, रन क्वेरी, देखो ये स्टेटस बार में हमारा ये स्टेटस आ रहा है रन क्वेरी। ठीक है, जब ये ग्रीन हो जाएगा पूरा तो ये हमारा रन हो जाएगा। ये हो गया। यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, हम जो ये हमसे पूछ रहा है कि आप जो है एक रो को अपेंड करना चाह रहे हैं, मतलब ऐड करना चाह रहे हैं। क्लिक यस और नो,
तो हमें क्या करना है, हमें अपेंड करनी है, तो हम क्लिक करेंगे यस। ठीक है, जैसे हमने यस पे क्लिक किया तो हमारा डाटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ये अपडेट नहीं हुई है। ठीक है, अभी मैं इसको अपडेट करके लेकर आता हूँ। ये देखिए ये अपडेट हो गई है हमारी। तो यहाँ पर 103 हमने आईडी लिखी थी, अंकित हमने नेम लिखा था और रिजल्ट हमने 90 लिखा था, ये देख लीजिए। और यही इसी तरीके से हमारा ये शो हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से जो हमारी वैल्यू वाला तरीका था, हम उससे जो है इंसर्ट करते हैं। फील्ड नेम को हम यहां से इरेज कर ले रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टू रिजल्ट वैल्यूज 104 की जगह हम लिख लेते, 103 की जगह हम लिख लेते हैं 104। नेम की जगह हम लिख लेते हैं मानव। ठीक है, और इसके मार्क्स हम लिख लेते हैं 95। ठीक है, जैसे ही अब मैं इसको रन करूंगा तब हम देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, मैंने ये फिर से हमसे पूछ रहा है कि यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, तो हम इसको यस कर देंगे। ठीक है, अब हमने ये यस किया है। ठीक है, यहां से इसको मैं क्लोज करता हूं, मैं दोबारा से इसको ओपन करूंगा तो ये एक हमारा डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, पहला वाला जो तरीका था जिसमें हमने फील्ड्स लिखे थे उसमें हमारा ये वाला डेटा आया था, और जो नेक्स्ट वाला हमने ये वाला लिखा जिसमें फील्ड्स नेम नहीं लिखे, हमने डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हैं, तो ये हमारा ये हुआ। देखिए यहां पर हुआ क्या है कि हमारा जो ये डेटा था, ठीक है, वो वैल्यूज जो है डेटा की वो यहां से उठी। पहला वाला जो था 104 जाकर के रखा गया है स्टूडेंट आईडी। क्यों इसी में क्यों रखा गया है, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट फील्ड ऑफ द टेबल। ठीक है, और हियर वी हैव डिफाइंड 104 एट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट फील्ड। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर हमने 104 लिखा है, तो ये भी हमारा 104 में ही सॉरी स्टूडेंट आईडी में जो फर्स्ट फील्ड है उसी में जाकर ऐड होगा। ठीक है, सेकंड पर मानव है तो सेकंड फील्ड में मानव जाकर ऐड हो जाता है। और ठीक है, और उसके बाद जो है 95 जो है हमारा रिजल्ट थर्ड वाले फील्ड में जाकर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये तरीका था हमारा इंसर्ट कमांड को यूज करने का। ठीक है, तो इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड पर। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे, जब मैं वीडियो आपकी गूगल मीट पर क्लास लूंगा तब आप मुझसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट कमांड पर चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी सिलेक्ट कमांड। ठीक है, सिलेक्ट कमांड क्या होता है, हमें डेटा को शो करने के लिए सिलेक्ट कमांड का यूज करना होता है। ठीक है, The select statement is used to retrieve multiple records from one or more table of a database. एक या एक से ज्यादा टेबल से डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को शो करना। ठीक है, वो हम किससे करते हैं, वो हम करते हैं सिलेक्ट कमांड से। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज डीएमएल कमांड्स। ठीक है, तो ये हमारी डेटा मैनिपुलेशन कमांड होती है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें जो है डेटा को शो कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ हम दो कह सकते हैं एट्रीब्यूट या क्लॉजेज हम यूज करते हैं। पहली होती है वेयर और दूसरी होती है ऑर्डर बाय। ठीक है, वेयर क्या होता है, ये कंडीशन के तौर पर हम यूज करते हैं, इसको हम क्राइटेरिया कह सकते हैं। ठीक है, कि इस क्राइटेरिया से ऊपर वाले या नीचे वाले जो स्टूडेंट्स हैं या इससे जो मैच कर रहे हैं, ठीक है, इससे जो मैच कर रहा है डेटा, जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है, ठीक है, वो डेटा हमारा रिट्रीव होगा। ठीक है, ऑर्डर बाय क्या होता है कि ये हमारा सॉर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऑर्डर बाय मतलब या तो हमारा डेटा किसी भी एक फील्ड से ऑर्डर हो जाए, सॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो वो हम रखते हैं ऑर्डर बाय के लिए। ठीक है, अभी हम करके दिखाते हैं आपको कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें डेटा जो है सारा का सारा रिट्रीव करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम एस्ट्रिक साइन का यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक इसका सिंटेक्स लिख के दिखा देता हूं। लिखते हैं सिलेक्ट और साइन लगाते हैं एस्ट्रिक साइन, ये हमारा एस्ट्रिक साइन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स कौन से टेबल से, और उसके बाद टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम ये हमारा छोटी सी कमांड होती है। ठीक है, जैसे ये हमारा, इससे क्या होता है कि हमारा सारा का सारा डेटा शो हो जाएगा जो भी हमारा टेबल नेम में सेव्ड है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको स्टूडेंट रिजल्ट जो हमारी ये वाली
टेबल है, इससे मैं डेटा आपको रिसीव करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम और टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है हमारा STU_result। ठीक है, ये मैंने लिखा। इसके बाद मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद इट हैज गिवन मी द नेम सॉरी डेटा ऑफ द STU रिजल्ट। बेटा ये हमारा क्वेरी के अंदर आया है ना, ये अलग चीज है। ठीक है, ये हमारी क्वेरी है। ठीक है, ये हमारी टेबल थी, लेकिन हमने इस डेटा को अपनी क्वेरी के थ्रू अपने सामने रिट्रीव कर लिया है यूजिंग द सिलेक्ट कमांड। ठीक है, तो ये समझ, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसी में आपको वेयर का यूज करके दिखाता हूं। ठीक है, वेयर क्या होता है कि ये मैं मानता हूं कि वेयर रिजल्ट इज इक्वल टू 90 मैं यहां पर लिख लेता हूं कि जहां पर कि मेरा जो रिजल्ट है वो अगर 90 है तो ही मुझे डेटा शो होगा, अदरवाइज जो इसके अलावा है 95 वाला है वो मुझे शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, वेयर इसके बाद हम वेयर के बाद हम लिखते हैं जो हमारा जिस भी फील्ड में हम ये क्राइटेरिया सेट करना चाहते हैं उसका नाम लिखते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है, सॉरी फील्ड का नाम क्या है, वो है हमारा रिजल्ट। ठीक है, वेयर रिजल्ट RESULT इज इक्वल्स टू 90, हमें 90 वाला डेटा चाहिए। ठीक है, जैसे मैं इस पर रन करूंगा, ये डेटा टाइप मिसमैच इन क्राइटेरिया expression, let's check it। तो ये जो हमारा डेटा था ये हमारा रिट्रीव नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है उसका डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे अब हमारा क्या होगा, ये हमारा डेटा रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, लेट्स चेक इट। यस, इट हैज बीन डन। देखिए ये जो है हमारा पहले क्या हो रहा था कि हमारी पूरी की पूरी टेबल उठ करके आ रही थी, सारा का सारा डेटा हमारा यहाँ पर शो हो रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ, सिर्फ वो डेटा हमारा शो हुआ जिसका रिजल्ट जो है वो 90 है। ठीक है, जो 90 रिजल्ट वाला है डेटा वो हमारा यहाँ पर शो हुआ है, बाकी जो अदर डेटा है वो हमारा शो नहीं हुआ है। मान लीजिए अगर मेरे पास एक डेटा और हो यहाँ पर 105, ठीक है, उसका नाम मैं रख लेता हूँ कुछ भी, एज इट इज लिख लेते हैं प्रदीप। ठीक है, उसके बाद इसके मार्क्स भी मैं 90 रख देता हूं। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूं। ठीक है, अब मैं यहां से फिर से इस कमांड को रन कराता हूं। ठीक है, रन कराने पर मुझे क्या डेटा मिलेगा, व्हाट हैपन, लेट्स चेक इट आउट। ये देखिए बेटा, तो अब मेरे पास जो डेटा है वो दो डेटा मुझे शो हो रहे हैं जिसके मार्क्स 90 हैं। ठीक है, जिसका रिजल्ट जो है 90 है, ये दो का है, जबकि हमारा जो एसक्यूएल रिजल्ट है इसमें हमारे पास 3 डेटाज हैं। मैं एक और डेटा इसमें सेव कर ले रहा हूं। ठीक है, इसमें मैंने नाम रख लिया मन। ठीक है, और इसके मैं मार्क्स रख लेता हूँ 89। ठीक है, इसके बाद ये डेटा भी मुझे शो नहीं होगा अगर मैं अपनी इसको दोबारा से रन कराता हूं। तो ये देखिए मेरे पास अभी भी सिर्फ वही रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि यहाँ पर है। अच्छा, अभी अब मैं आपके सामने दूसरा जो हमारा क्लोज होता है वो होता है कौन सा, वो होता है हमारा ऑर्डर बाय का। ठीक है, उसको भी मैं यूज करके दिखाता हूं। अभी हमारे पास मैं उसको नेम के साथ लिखूंगा। ठीक है, ऑर्डर बाय नेम। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटा है वो इसके अकॉर्डिंग हमारा स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग हमारा डेटा जो है वो सॉर्ट हो रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, नेम के अकॉर्डिंग अपने डेटा को सॉर्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहां क्या करूंगा, क्वेरी में लिखूंगा ऑर्डर्ड बाय ऑर्डर बाय। ठीक है, और अपने जो हमारा फील्ड का नाम है, फील्ड का नाम क्या है, नेम। ठीक है, ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, ऑर्डर बाय नेम।
और उसके बाद असेंडिंग में लिखना है या डिसेंडिंग में लिखना है वो आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, असेंडिंग में लिखा है, ठीक है। आप इसको डिसेंडिंग में यूज कर सकते हैं, मैं करके दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो अभी के लिए असेंडिंग में यूज करते हैं और मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास क्या आ गया, ये अंकित ए पहले आ गया, प्रदीप बाद में आ गया, ठीक है। ये पहले भी ऐसे शो हो रहा था, मैं इसको डिसेंडिंग करके दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। DESC, ठीक है। मैं इसको रन करता हूं, ये देखिए बेटा, प्रदीप फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है और अंकित सेकंड पोजीशन पर आ गया है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेटा है वो नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। वो हमारा इसके अकॉर्डिंग सीरीज में आ गया है, ठीक है। तो ये था हमारा डेटा को रिट्रीव करने का तरीका यूजिंग द सेलेक्ट कमांड, ठीक है। पर हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें सारी की सारी जितने भी हमारे कॉलम्स थे, फील्ड्स थे, ये सारे के सारे हमने शो किए हैं, ठीक है। अगर हमें डेटा कुछ लिमिटेड फील्ड से चाहिए, मान लीजिए हमारी टेबल जो है बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, ठीक है, जबकि हमें जो डेटा चाहिए वो सिर्फ 2 या 3, मान लीजिए हमें सिर्फ यही डेटा चाहिए, ठीक है। जबकि हमारे पास डेटा जो है यहाँ तक जा रहा है कि उसमें मार्क्स आ रहे हैं हिंदी के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का जो एड्रेस आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, वो सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन हमें सिर्फ नेम और रिजल्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें सिर्फ उसमें क्या करना होता है, हमें जो है उसका नाम लिखना होता है कॉलम का, ठीक है। वो कैसे होता है तो मैं इसका यहाँ से ये वेयर वाली कमांड यहाँ से हटा देता हूँ, ये जो क्लोज है मेरी, ठीक है। उससे क्या होगा कि मेरा सारा का सारा डेटा यहाँ पर शो होगा, ठीक है। अब मेरे पास डेटा शो करने के लिए कुछ काफी ज्यादा चीजें हो गई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे जो है सिर्फ लिमिटेड कॉलम्स के वो चाहिए, मान लीजिए मुझे सिर्फ नेम और आईडी चाहिए, रिजल्ट से मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो मैंने एस्ट्रिक साइन लगाया है, मैं उसकी जगह पर कॉलम का नाम लिखूंगा। यहाँ पर लिखा जाएगा कॉलम नेम, कॉलम 1 कोमा लगाएंगे, ठीक है, कॉलम 2, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही चलते रहेंगे, जितने भी आपको कॉलम लिखने हैं यहाँ पर वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, जितने भी आपको यहाँ पर शो करने हैं। उसके बाद हम ये आगे की चीजें वही रहेंगी, मैं इसको भी हटा देता हूँ ऑर्डर बाय को, ठीक है। ऑर्डर बाय को मैंने हटा दिया है, ठीक है, जैसे भी है। अब ये क्या करेगा कि मुझे सिर्फ कॉलम 1 और कॉलम 2 को ही शो करेगा, लेकिन ये कॉलम 1 कॉलम 2 मैंने आपको सिंटैक्स में लिखकर दिखाया है, जबकि हमारे पास जो नेम है कॉलम्स के वो STUID और नेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उनका नाम लिखूंगा। मैं क्या करता हूँ, इनको इरेज करता हूँ, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैं यहाँ पर लिखूंगा STUID कॉमा नेम, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा और मेरे पास जो पहले रिजल्ट भी शो हो रहा था, ये पूरी की पूरी शो हो रही थी, वो इस बार पूरी नहीं होगी। इस बार सिर्फ स्टूडेंट आईडी और नेम यहाँ पर मेरे शो होने चाहिए। लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। ये देखिए बेटा, स्टूडेंट आईडी हमारे यहाँ पर ये शो हो गई है और नेम हमारा यहाँ पर शो हो गया। बाकी जितना भी डेटा था, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही था, अभी हमारा जो डेटा था वो यहाँ पर सिर्फ एक सभी का शो हो रहा था, सभी कॉलम्स यहाँ पर आ रहे थे, सारे फील्ड्स आ रहे थे, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ वही फील्ड्स यहाँ पर शो हो रहे हैं जो कि हमने अपने SQL कमांड में शो कराए हैं, ठीक है। जैसे STUID और नेम हमने यहाँ पर कराया है। अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, रिजल्ट भी यहाँ पर शो होने लगेगा, RESULT। लेकिन उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो मेरा एस्ट्रिक साइन से भी मेरा यहाँ पर शो हो रहा था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 3 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर जितने ये तरीका होता है कि अपने लिमिटेड कॉलम्स को शो करने का यूजिंग द सिलेक्ट कमांड, ठीक है। आप इसमें भी वेयर क्लोज और ऑर्डर बाय क्लोज यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर वेयर रिजल्ट is equals to 95, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ सेमीकोलन लगाने के बाद, तो मुझे सिर्फ एक डेटा शो होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा तरीका होता है सेलेक्ट कमांड को यूज करने का।
तो ये थी हमारी सिलेक्ट कमांड। इसके बाद आती है हमारी अपडेट कमांड। अभी उस पर चलते हैं, अपडेट कमांड पर। अपडेट कमांड में क्या होता है कि हमारा जो डेटा है, जो पहले से ही हमारा ये डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए अभी तो हम यहाँ से इसको एडिट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एसक्यूएल कमांड्स भी होती हैं इसको एडिट करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या कमांड होती है, वो होती है अपडेट कमांड, ठीक है। अपडेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्वेरी में जाएंगे, ठीक है, एसक्यूएल व्यू में आएंगे, एसक्यूएल व्यू में हम टाइप करेंगे अपडेट, UPDATE अपडेट। उसके बाद हमें लिखना होता है टेबल नेम, जो भी हमारा टेबल नेम होता है, ठीक है। टेबल नेम लिखने के बाद, ठीक है, हमें एक कीवर्ड यूज करना होता है सेट। सेट नाम का हमारा कीवर्ड होता है सेट। इसके बाद हमें वो कॉलम्स का नाम लिखना होता है जो जिस कॉलम को हमें अपडेट करना है, ठीक है। मान लीजिए हमें मल्टीपल कॉलम अपडेट करने हैं, तो कॉलम 1, उसके बाद इक्वल्स वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है जो आपको अपडेट करनी है, जो आपको सेट करनी है, वो आप यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलम 2 इक्वल्स टू उसकी वैल्यू, ठीक है, या जितने भी आपको यहाँ पर कॉलम्स अपडेट करने हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू इक्वल के साथ कॉलम के नाम के साथ वहां पर लिख दी जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दी जाती है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन में क्या होता है कि जिस डेटा को आपको सेट करना है, मान लीजिए आपको सिर्फ एक डेटा जिसकी आईडी है उसको सेट करना है, जिसका रिजल्ट है उसको सेट करना है, ठीक है, या जिसका पास रिजल्ट है उसमें कुछ चेंजेस करनी है, या जिसका फेल रिजल्ट है उसके कुछ चेंजेस करने हैं, या सपोज कि आपके साथ में जो है नाम है, ठीक है, वो नाम आपको चेंज करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, वेयर, और यहाँ पर हम अपनी लिखते हैं कंडीशन, ठीक है, जो भी हमारी कंडीशन होती है, ठीक है। तो मैं अभी आपको इसका यूज करके दिखा देता हूँ अपनी रिजल्ट वाली जो हमारी कमांड है, सॉरी टेबल है। इसमें हमारा क्या है कि 103 इसके जो मार्क्स हैं वो है 90। हमें क्या करना है, इस मार्क्स को हटा करके 90 से 93 करने हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ अपडेट, अपडेट के बाद उसका टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, STU_result मैंने लिखा हुआ है, आई थिंक गलत लिखा हुआ है, RESULT, ठीक है, रिजल्ट। उसके बाद हमारा कीवर्ड होता है सेट, सेट कीवर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे। कॉलम का नाम है हमारा, कौन सा अपडेट करना है, कॉलम का नाम है हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट इक्वल कितना लिखना था मुझे, 92 सपोज कर लेते हैं, ठीक है, 92, ठीक है। वेयर, अब हमें ये बताना भी तो है ना कि कौन से डेटा को, कौन से रो को हमें अपडेट करना है। तो कौन से रो को अपडेट करना है, जिसकी स्टूडेंट आईडी हमारी 103 है, या जिसका नेम तो हमारा मैच हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है, ये हमारी मैच नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वेयर STU_ID इक्वल्स टू कितनी है, 103, ठीक है। मैं सेमीकोलन लगाता हूं, इसको मैं रन करता हूं, लेट्स चेक इट आउट। ये कुछ एरर देगा जरूर नहीं, हम इसने कहा कि यू आर अबाउट टू अपडेट 1 रोज, ठीक है, आप जो है एक रो को अपडेट करना चाह रहे हैं। मैंने अभी इसको नो किया। अभी यहाँ पर देखिए हमारा जो इसका रिजल्ट है वो है 90। जब मैं इसको अपडेट करके लेकर आऊंगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा हमारा 92, ठीक है। तो मैं इसको चेक करता हूं एक बार, इस बार मैं इसको यस करता हूं, ठीक है, और देखते हैं कि ये हमारा रन हो गया है और अपडेट भी हो गया है। देखिए यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है, पहले यहाँ पर 90 शो हो रहा था, अभी हमारा 92 शो हो रहा है। इसी तरीके से हम सारे डेटा को, सारे फील्ड्स को हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, मल्टी कॉलम्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, मल्टी क्राइटेरिया हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ये हमारा था अपडेट कमांड का। इसके बाद हमारा डिलीट कमांड का। तो हम डिलीट कमांड क्या होती है कि हमें डेटा को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं डिलीट कमांड। द डिलीट कमांड इज यूज टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। जो हमारा डेटा टेबल में पहले से ही मौजूद है, ठीक है, उसको हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिलीट कमांड। तो क्वेरी पर चलते हैं, डिलीट कमांड का यूज करते हैं। डिलीट कमांड सिंपली बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंपली टाइप डिलीट, कैप्स लेटर में simply type delete from
कौन सी टेबल से आपको डेटा डिलीट करना है। तो टेबल का नाम यहां पर आप लिखते हैं, टेबल नेम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। उसके बाद स्पेस लगाकर आप अपनी कंडीशन वहां पर लिखेंगे, कौन से डेटा को आपको डिलीट करना है। जैसे कि आपको डिलीट करना है किसी स्टूडेंट आईडी, पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी को आपको डिलीट करना है, तो वो यहाँ पर आप अपनी कंडीशन लिख देंगे, ठीक है। मैं आपको अभी यहाँ पर सिंटेक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। ONDIDION, ठीक है, ये हमारा इसका सिंटेक्स होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन हमारी जो भी होगी, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूं, हमारा जो तरीका है, टेबल नेम है हमारा स्टू अंडरस्कोर रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद वेयर हमें क्या डिलीट करना है, STUID, जहां पर हमारी क्या है, स्टूडेंट आईडी जो है इक्वल है किसके, मुझे डेटा डिलीट करना है मान लीजिए प्रदीप का, ठीक है। तो इसकी स्टूडेंट आईडी कितनी है, 105, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 105, सेमीकोलन लगाता हूं, मैं अपनी क्वेरी को रन करता हूं, क्वेरी रन हुई और you are about to delete one row from the specified table, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है, हमें वार्निंग दे रहा है कि आप एक रो को डिलीट करें, डेटा को डिलीट कर रहे हैं कि स्पेसिफाइड टेबल से, अपनी टेबल से। तो आप क्या वास्तव में इसको डिलीट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे यस डिलीट दिस। जैसे मैंने इसको क्लिक किया और ये देखिए यहां से प्रदीप के सामने यहाँ पर डिलीटेड लिखकर आ गया है, तो द डेटा हैज बीन डिलीटेड। अब हमें नहीं पता है कि यहाँ पर कौन सा डेटा हुआ करता था, ठीक है। वैसे हम जानते हैं कि प्रदीप हुआ करता था, लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमने डिलीट हो गया उसमें हमारा कुछ शो नहीं हो रहा है, सिर्फ डिलीटेड लिखकर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डिलीट कमांड थी। अब इसके बाद आती है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड देखो बेटा, डिलीट कमांड क्या होती है, डिलीट कमांड हमारे डेटा को डिलीट करने के लिए होती है, जबकि जो ड्रॉप कमांड होती है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। डिलीट कमांड क्या होता है कि एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करती है टेबल के अंदर से, और ड्रॉप कमांड क्या होती है कि एग्जिस्टिंग टेबल को डिलीट करती है डेटाबेस के अंदर से। मतलब अभी जो हमने डिलीट कमांड यूज की थी उससे हमारा ये डेटा डिलीट हुआ, लेकिन अगर हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं डिलीट की जगह, तो हमारी जो पूरी STU रिजल्ट नाम की ये टेबल बनी हुई है, ये पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। तो लेट्स चेक इट आउट कैसे होती है, इसका सिंटेक्स क्या होता है। हम क्वेरी में चलते हैं, क्वेरी में लिखेंगे हम अपना ड्रॉप, ड्रॉप लिखने के बाद अपना एक लिखते हैं टेबल, बेटा कैपिटल लेटर्स में यूज कर रहा हूं यहाँ पर, ड्रॉप टेबल, ठीक है। उसके बाद अपनी टेबल का नाम, टेबल, ठीक है। तो टेबल नेम हमारा यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हम सिंपली सेमीकोलन लगाएंगे और इसको रन कर देंगे। तो हमें कौन सी टेबल अपनी डिलीट करनी है, ड्रॉप करनी है, वो हमारे STU अंडरस्कोर रिजल्ट। और जैसे मैं इसको रन करूंगा आप यहाँ पर ये जो डिलीट ये है ये पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्यों अभी नहीं होगी, क्योंकि एरर दे देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हमने इसको ओपन किया हुआ है, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट, ये अभी हमें एरर शो करेगा, द डेटाबेस इंजन कुड नॉट लॉक टेबल बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन यूज। यही मैं आपको बता रहा था कि अभी आपकी यूज में है। तो पहले हम यहाँ से जो है क्लोज करेंगे, ठीक है। इसमें से हमने ये पूछ रहा है कि चेंजेस जो किए हैं उसको रखना है या नहीं रखना, तो मैंने नो कर दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, रन करने के लिए डिजाइन टैब और रन पर हम क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ से वो टेबल डिलीट हो चुकी है। पहले यहाँ पर शो हो रही थी, अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपकी टेबल शो हो रही थी पहले, लेकिन जैसे मैंने ड्रॉप टेबल कमांड यूज की है वो हमारी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।